A very big hello to all my students. I'm here with the solutions of the FT1 of the botany part. Let's start with the very first question. 101. 101. All living organisms are capable of. That means they are talking about what? The identifying features of the living beings. Evolving themselves? Yes, they can evolve. सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यस, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है. सेल्फ रेगुलेटिंग, यस. रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स, रिप्रोडक्शन इज नॉट द आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग्स. क्यों? बिकॉज देयर आर सर्टेन लिविंग बीइंग्स हु कैन नॉट रिप्रोड्यूस. Like, give an example for that. A very common example for that is sterile human beings. Human beings hai. We are having mule. What is mule? A cross between a male donkey and a female horse. We are having worker bee. These living organisms cannot reproduce. So that means all the living organisms reproduction karte hain. That is a false statement. That means the answer for 101 happens to be the C option. Clear? Select the haploid structure in a bryophyte. Let's talk about 102. Haploid structure in a bryophyte. Let's talk about the word the sporophyte of the bryophytes. The sporophyte or the sporangium is divided into three parts. What are the three parts known as? Foot, seta, capsule. These are the three parts. And वो स्पोरोफाइट है तो ऑटोमेटिकली डिप्लॉयड है. तो ये तीनों के तीनों क्या हो गया मेरे पास? डिप्लॉयड. सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए गया, सी गया, डी गया. बट लुक एट द सी ऑप्शन. वी आर हैविंग द वर्ड गैमा. Gamma is present on the gametophyte. So that happens to be a haploid structure. But because वो C के साथ में है, foot and the gamma, that cannot be the answer. Therefore, the answer for 102 is the B option. What is B? Protonema. What is protonema? The juvenile stage of the gametophyte of the bryophytes or the mosses out here. अगर वो juvenile stage किसका? gametophyte का है तो ऑटोमेटिकली हैप्लॉइड हुआ ना. और हमारे पास प्रोटोनिमा के बारे में क्या लिखा है? What is this? It reproduces by what? Fragmentation. Fine. चलिए. Both the gametes are non-motile and similar in size in. Let's talk about the word 103. Question number 103. I hope आपको पता है 3 types का हमारे पास में sexual reproduction है. Isogamous and isogamous, oogamous. हमारे बुक में isogamous के जब बारे लिखा है iso, similar gametes. एंड दीज सिमिलर गैमेट्स जो है हमारे पास में यहाँ पे नॉन मोटाइल है. किसके अंदर? स्पाइरोगाइरा. सो आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी ए ऑप्शन. लेट्स टॉक अबाउट द अदर वंस. पॉलीसाइफोनिया. पॉलीसाइफोनिया क्या है? रेड एल्गी जिसमें मोटिलिटी है ही नहीं, तो एक भी मोटाइल नहीं है. व्हेन आई टॉक अबाउट द कारा एंड द यूलोथ्रिक्स, ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास में मोटिलिटी होता है. इन केस ऑफ कारा यू आर गोइंग टू हैव व्हाट? The anthrozoids, the male gametes which are motile. ठीक है ना? चलो, let's talk about 103. The answer for that is what? A. Let's proceed with 104 now. चलिए. Select the correct statement from the following. पहला correct statement है. Let's talk about each of it. A. Gamma are multicellular. Yes, gamma is a cup, a receptacle on which it is been present out here. Gamma cup के ऊपर gamma है. Multicellular, yes. असेक्सुअल बड्स, यस. डिप्लॉयड. अभी मैंने आपको क्या बताया? गैमा जो है हमारे पास में इज प्रेजेंट ऑन द गैमेटोफाइट. सो दैट मीन्स ये गैमेटोफाइटिक इन नेचर है. दैट मीन्स वो हैप्लॉयड इन नेचर है. सो मेरे पास में दिस ऑप्शन हैपेंस टू बी रॉन्ग. सो दिस इज रॉन्ग. हमने बोला है करेक्ट बताना है. इन ब्रायोफाइट्स, तो सेकेंड ऑप्शन देखते हैं. इन ब्रायोफाइट्स हमारे पास स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय मेयोटिक डिवीजन्स. अगर आपको मालूम है स्पोरांजियम इज प्रेजेंट आउट हियर. स्पोरांजियम में कैप्सूल है. कैप्सूल के अंदर लेट्स टॉक अबाउट दिस. स्पोरांजियम में कैप्सूल. कैप्सूल में सर्टेन सेल्स आर नोन एज द स्पोर मदर सेल्स which undergoes meiosis and produces what? Haploid spores.
दैट मीन्स दिस आर हैप्लॉइड। तो स्पोर्स कैसे बना? मियोसिस से। सो दिस इज राइट। वैसे भी ब्रायोफाइट के पास में स्पोरिक मियोसिस होता है। द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन। लेट्स स्टिल सी द सी वाला। लीफी मेंबर्स आर फाउंड इन द लिवरवर्ट्स। ऑब्वियसली लिवरवर्ट्स में लीफी मेंबर्स नहीं है, किसमें होता है? मॉसेस। व्हाट इज रॉन्ग आउट हियर? फाउंड इन व्हाट? इन द मॉसेस। ओके। In pteridophytes, the spores germinate to produce sporophyte. No. Again, spores out here, spores happens to be haploid in nature. When it is haploid in nature, तो वो क्या sporophyte तो नहीं बनाएगा? What is this going to form? It's going to form the gametophyte. And what is the gametophyte of the pteridophyte, especially the ferns known as? It's known as what? Prothallus. तो यहाँ पे right answer is option number B. Let's talk about 105. Below given features belongs to which of the following cell organelle? सेल ऑर्गेनल के बारे में बात कर रहे हैं। 70S राइबोसोम। देख लीजिए, राइबोसोम एक ऑर्गेनल के अंदर है। जैसे ही आया यहाँ पर टिक कर जाना चाहिए। हमारे पास दो ऑर्गेनल्स हैं। कौन कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वाला। प्रोड्यूसर्स सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ऑब्वियसली एटीपी केमी ऑस्मोटिक थ्योरी किसमें एप्लीकेबल है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, बोथ ऑफ इट। possesses single circular DNA molecule. ये भी मेरे पास में क्या है? It is seen in both the cases. माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी ट्रू है और मेरे पास में कॉन्ड्रिया के लिए भी ट्रू है एंड मेरे पास में क्लोरोप्लास्ट के लिए भी ट्रू है। दोनों के लिए ट्रू है। लेट्स सी द ऑप्शंस नाउ। ऑप्शंस में A इज राइट विच इज माइटोकॉन्ड्रिया, B इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नो, इसके पास में नहीं होता है। उसके पास में राइबोसोम्स होता है, but we are not going to have ATP or DNA. Golgi apparatus में कुछ नहीं है, vacuoles में नहीं है। Therefore, the answer for the question out here happens to be A option. अगर plastic chloroplast होता तो both of this correct होता। 106. Identify the following statements as true or false. ठीक है, let's see to that. The axonym. Axonym is the core part, जिसको flagella का core portion usually has 9 doublets. डबल है ना, 9 doublets or of readily arranged peripheral microtubules, which is correct, and a pair of centrally located microtubules. I hope you remember, ये मेरे पास peripheral है, यहाँ पे मेरे पास में 9 ऐसा है, but what is this 9 out here? 4, 5, 6, 7, 8, 9, and this 9 very close हो गया। चलो, this 9 are present out here, duplet के form में। चलो, make it 2 each. This is 2 each. This is very close. It should not be very close. और ये हमारे पास ऐसा, और बीच में मेरे पास क्या है? 2 सिंगलेट्स हैं। करेक्ट। सो दैट इज करेक्ट ऑप्शन। तो A इज राइट। A इज करेक्ट, ट्रू। द प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द यूकैरियोटिक फ्लैजेला। ऑब्वियसली नो। उसमें बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, और फिलामेंट भी किसका बना है? फ्लैजेलिन। तो दैट इज नॉट सिमिलर टू दैट। तो B ऑप्शन हैपेंस टू बी अ रॉन्ग ऑप्शन। लेट्स टॉक अबाउट C. Both cilium and flagellum merge from the central-like structures called the basal bodies. Yes, cilia flagella कहाँ से arise करता है? It arises from the basal bodies. So that is correct out here. Let's talk about D. Centromere holds the 2 chromatids of the chromosomes, which is correct. हमारे पास ये centromere होता है, ये मेरे पास 2 chromatids है, so that happens to be correct. So true, false, true, true. So true, false, true, true. That means the answer for this question happens to be the A option. Fine. 107 now. Which of the given layer of the bacterial cell envelope is structurally similar in the eukaryotes? Chalo, let's have a look. Slime layer, pehla wala. We don't have slime layer in case of the eukaryotes. So that cannot be similar. Then we are having the glycocalyx. We don't have this in case of the eukaryotes. नहीं होगा. In fact, glycocalyx is slime layer and the capsule layer. Plasma membrane. Yes, what is plasma membrane? The cell membrane. What is the cell membrane made up of? हमारे अंदर भी lipids and protein का बना है और इसके अंदर भी lipids and proteins का बना है. So that means which is similar in the prokaryotes and eukaryotes, that happens to be the C option. Let's read the D wala, cell wall. In case of the animals, we don't have the cell wall, but plants में cellulosic है. Animals में किस चीज का बना? याद करिए, peptidoglycan. So that means the answer for 107 happens to be the C option. 108.
इफ अ फुली टर्जिड सेल, ये मेरे पास में एक टर्जिड सेल है, ठीक है, टर्जिड फुला हुआ सेल है, is placed in a solution having solute potential more negative than the cytoplasm. ये एक solution है, इसका solution है, इसका क्या है, solute potential जो है हमारे पास में माइनस है, more negative, सपोज -10 रख लेते, ठीक है, और इसका क्या है हमारे पास सपोज -5 रख लेते, बिकॉज मोर, एंड माइंड यू माइनस में ही होना पड़ेगा, मोर नेगेटिव। तो अब क्या है, इसके पास में मोर सॉल्यूट्स है, इसके पास में मेरे पास कम सॉल्यूट्स है, तो व्हाट हैपेंस आउट हियर, बिकॉज इट्स हैविंग मोर सॉल्यूट्स देन दिस, द मूवमेंट अकर्स फ्रॉम हियर टू हियर, तो ये यहां से यहां पे जाएगा, एंड व्हेन मूवमेंट अकर्स फ्रॉम हियर टू हियर, व्हाट डज इट शो, इट शोज प्लाज्मोलाइसिस, द ऑप्शन नंबर सी आउट हियर, ठीक है। तो पानी बाहर जाएगा तो सेल श्रिंक करेगा, दैट इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। चलिए 109, how many of the given transport methods is highly selective? Whenever I use the word selective, that means I'm talking about what? I'm talking about the enzymes, the carriers, and require proteins. तो selective का प्रोटीन है मतलब enzymes है, तो selective in nature होना पड़ेगा। सबसे पहले simple diffusion, in case of simple diffusion हमारे को कोई भी प्रोटीन नहीं चाहिए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑब्वियसली वी रिक्वायर अ कैरियर, और जो कैरियर होता है वो हमारे पास प्रोटीनिशियस होता है, सो दैट इज सिलेक्टिव इन नेचर। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमारे पास सिलेक्टिव इन नेचर हो गया, एज वेल एज प्रोटीन रिक्वायर्ड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमारे को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो सिलेक्टिव इन नेचर है। अपहिल ट्रांसपोर्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और उसको भी चाहिए, सो दैट मीन्स द आंसर फॉर 109 हैपन टू बी 3 आउट हियर, सो आंसर इज द बी ऑप्शन, ओके। चलिए, द एंजाइम्स विच कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम वन अमीनो एसिड, transfer of amino group from one amino acid to the keto acid of a keto acid is, चले देखें, अगर मेरे पास में एक कीटो एसिड है, when I talk about a keto acid, that means I'm having CO वाला ग्रुप, मेरे पास में ये रिएक्ट कर रहा है, एक अमीनो एसिड है, मेरे पास में यहाँ पे अमीनो ग्रुप लगा है, ठीक है। सो दिस अमीनो एसिड इज सेड टू बी द अमीनो डोनर, दैट मीन्स ये अमीनो ग्रुप को डोनेट करेगा। कीटो एसिड इज अमीनो एक्सेप्टर, ठीक है ना, ये अमीनो एक्सेप्टर, ये इससे अमीनो ग्रुप ले लेगा। अब हमारे पास में ये जब रिएक्ट किया, हमारे पास में ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, विच इज द एंजाइम, सो दिस कीटो एसिड बिकम्स अमीनो एसिड, और ये मेरे पास अमीनो एसिड बिकम्स अ कीटो एसिड, ठीक है ना। So what is this? Which enzyme is required for it? Obviously transaminase यहाँ वहाँ किया है, the answer happens to be the B option. But still let's go for the other option, pyruvate dehydrogenase. कहाँ पर? After glycolysis, जब pyruvic acid converts into acetyl coenzyme में, that is pyruvate dehydrogenase, है ना। फिर हमारे पास में नाइट्रोजनेस, क्या है हमारे पास में, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसको नाइट्रोजनेस, नाइट्रेट रिडक्टेस, ऑब्वियसली नाइट्रेट जब नाइट्राइट बनता है, एंड सो ऑन, उसको बोलते हैं नाइट्रेट रिडक्टेस। तो यहां पर हमारे पास कौन सा एंजाइम है, दैट इज सेड टू बी ट्रांसअमाइनेस। देख लीजिए, कैटलाइज ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप, दिस इज द अमीनो ग्रुप फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वन अमीनो एसिड, यहां से किया, किसको गया, टू द कीटो एसिड ऑफ द कीटो, to the keto group of the keto acid. So what is this known as? Transaminase. चलिए 111, products formed during the photorespiratory pathway catalyzed by the Rubisco is let's talk about that. हमारे पास में यहाँ पर कौन है रिएक्टेंट, राइबुलोज 1,5 biphosphate या bisphosphate. When it undergoes what? Photorespiration. That means what does it undergo? Oxidation कर रहा है, कौन? Rubisco. The enzyme is Rubisco. Rubisco के पास में डबल एफिनिटी है, ड्वेल एफिनिटी है, C से क्या करता है वो कार्बोक्सिलेशन, O से करता है ऑक्सीडेशन, बट यहां पर अभी बता रहा है फोटोरेस्पिरेटरी। फोटोरेस्पिरेटरी बेसिकली मीन्स ऑक्सीडेशन करेगा।
So when it undergoes oxidation out here, तो क्या बनता है? Look at this is a 5 carbon compound. तो अगर मेरे पास इसके पास में प्रोडक्ट आता है 3-phosphoglyceric acid, which I can also call that to be 3-phosphoglycerate. 3 नहीं लगाया, no problem. Phosphoglycerate, which is right. 3 carbon compound बन गया. But I'm still left with 2 carbon compound out here. तो क्या बनाऊंगी मैं बनाऊंगी phosphoglycolate या glycolic acid, glycolate. So that is a 2 carbon compound. 3 carbon plus 2 carbon दोनों बन गया. So that means A and B both is correct. That means option number D. Okay. Select the odd one with respect to ATP synthetase enzyme present in the chloroplast. सबसे पहले ATP synthetase enzyme हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है. ठीक है, तो लेट्स गो फॉर इट. CF0 has catalytic activity. ठीक है, now CF1 has catalytic activity. Obviously ये catalytic activity है, तभी यहाँ पर हमारे पास में ADP plus inorganic phosphate ATP बनाता है. So that is correct. CF0 protrude on the outer surface of the thylakoid. आपने अगर ये देखा है, ये मेरे पास में ऐसा है यहाँ पर, ठीक है ना. हमारे पास में दिस इज द थैलाकॉइड, सपोज दिस इज थैलाकॉइड. यहाँ पे ये मेरे पास में क्या है, स्ट्रोमा. ठीक है ना. यहाँ पर मेरे पास में प्रोटोन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस. इस प्रोटोन कंसंट्रेशन को, इस ग्रेडियंट को आई एम सपोज टू ब्रेक इट डाउन. तो मेरे पास में ये जो होगा द F0, CF0 यहाँ पर होगा, CF1 यहाँ पर होगा. That means CF1 protrude on the outer surface of the thylakoid, CF1. पर वहाँ पे क्या लिखा, CF0. So that means the B option is incorrect. And उसने पूछा odd one. आगे भी पढ़ लेते हैं. The proton gradient is broken down due to the movement of proton across the ATP synthetase. Yes, यहाँ से प्रोटॉन वहाँ पे जाएगा और वो टूट जाएगा, है ना. CF0 has a proton channel for the proton movement. Obviously channel है, इसके थ्रू हमारे पास प्रोटॉन आगे जाता है. क्लियर? चले. So answer is option number B for it. Let's proceed with 113. The pteridophytes reduction division occurs when? अभी मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट्स के बारे में. ब्रायोफाइट्स एंड द टेरिडोफाइट्स दोनों shows you haplodiplontic life cycle. एंड दोनों के अंदर मियोसिस क्या होता है, स्पोरिक मियोसिस. तो लेट्स सी टू दैट. 113. इन टेरिडोफाइट्स रिडक्शन डिवीजन अकर्स व्हेन स्पोर्स आर फॉर्म्ड. तो कहां से स्पोर्स आर फॉर्म्ड? द स्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा और स्पोर्स बनाएगा. सो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू हैव इट. ठीक है, क्लियर विद दिस? चलो. प्रोथैलस इज फॉर्म्ड. ये स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, प्रोथैलस. ठीक है ना. चलिए. In which of the following sporophyte remains attached to the gametophyte? चलिए देखते हैं. 114. आपने अगर डायग्राम देखा है, एनसीईआरटी में बना हुआ है, ऐसे करके एक लीफी स्ट्रक्चर है. दिस इज द लीफी स्ट्रक्चर, द gametophyte फॉर दिस. एंड यहां से एक स्ट्रक्चर ऐसे बाहर आ रहा है. दिस इज द gametophyte ऑफ द मॉसिस. उसके ऊपर ये स्पोरोफाइट अटैच्ड है. दैट मीन्स द फंजाई कैनॉट बी द आंसर, द जिम्नोस्पर्म्स कैनॉट बी द आंसर, एल्गी कैनॉट बी द आंसर. द आंसर हैपेंस टू बी डी, द ब्रायोफाइट्स. द स्पोरोफाइट, दिस द स्पोरोफाइट एज अ होल इज अटैच्ड टू व्हाट, गेमेटोफाइट. तभी हम लोग क्या बोलते हैं, द स्पोरोफाइट इज सेमी डिपेंडेंट और डिपेंडेंट ऑन द गेमेटोफाइट इन द ब्रायोफाइट्स. ठीक है, चलिए. 115. See the difference between alcoholic fermentation and aerobic. चलो फर्स्ट वाला ए ऑप्शन. इसके अंदर में अगर मैं बोलती हूँ इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ एटीपी कितना है, 38. और इसमें कितना है, एनारोबिक में मेरे पास में जस्ट 2. So that means number of ATP produced is different. Next, evolution of carbon dioxide. Obviously, if I talk about this, in case of aerobic, 6 molecules of carbon dioxide are evolved. यहाँ पे just 2 molecules of carbon dioxide. ये क्या है, ATP. नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन. इसके अंदर मुझको ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे मुझको ऑक्सीजन नहीं चाहिए. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. अल्टीमेटली टू प्रोड्यूस ATP हमारे को दोनों के अंदर में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करना ही पड़ेगा. व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? अल्टीमेटली
ऑक्सीडेशन ऑफ द रिड्यूस कोएंजाइम्स, जो हमारे वहां पे प्रोड्यूस हुआ था NADH2, उसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे और उसको हम ATP बनाएंगे, एंड दैट इज पॉसिबल बाय oxidative phosphorylation. So the answer for the question happens to be the D option. 116. Hormone used to increase sugarcane yield is, sugarcane yield कौन इंक्रीज करा? 20 टन्स पर हेक्टर बुक ने लिखा हुआ है, पर हेक्टर कौन इंक्रीज करता है, कौन करवा रहा है? इट इज बाय जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर डी। जब ये शुगर केन इंक्रीज करा रहा है, यील्ड को इंक्रीज करा रहा है, दैट मीन्स हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए भी रॉ मटेरियल बन रहा है, तो बहुत सारा रम बनेगा, डिस्टिलरीज में हेल्प करेगा। फाइन, चलिए लेट्स टॉक अबाउट 117. Incorrect statement. Flowering is dependent upon the length of the light period. Yes, right है, because हमारे पास में long day plants, short day plants and day neutral plants होते हैं. So that means A is correct. Look at the B option. B option says that soybean tobacco flowers when it receives long photo period. In fact, जब हमारे पास में photo periodism study किया गया, that was on soybean and tobacco, और ये short day plants था. अगर by chance आपको नहीं आता है तो need not panic. Let's study the C option. C option को देखो. The site of perception of photoperiod leaves of the plant. Photoperiod is the leaves of the plant, which is correct. हम सबको पता है photoperiodic induction कहाँ पर होता है? The leaves out here. Tomato is a day neutral plant. आपको मैंने सिखाया था, जितने भी plants जो हमको throughout the year मिलते हैं वो day neutral plants होते हैं. So that means this is also correct. That means the answer, the incorrect statement for this happens to be the B option. Okay? चलिए, let's proceed further. 118. मोनोकार्पिक प्लांट, दैट मीन्स जो फ्लावर एक ही बार करेगा अपना लाइफ स्पैन में. नॉर्मली हमारे पास में एनुअल्स, बाइनियल्स आर मोनोकार्पिक. बट लुक एट द वर्ड मैंगो. मैंगो क्या है? पेरिनियल है, इतना साल के लिए रहता है. तो एक ही ट्री के अंदर आपके पास में बहुत बार फ्रूटिंग होती है, फ्लावरिंग होती है. सो मैंगो इज अ पेरिनियल एंड इट्स अ it is not a monocarpic. What is that? Polycarpic. The answer for this happens to be 118 का the D option. 119. Select the incorrect statement from the following. चलो देखते हैं incorrect again. The early stage of embryogeny are similar both in dicots and the monocots. Correct है. हमारे पास octane stage, that means globular stage है, फिर हमारे पास heart shaped है, then हमारे पास mature stage है, वो torpedo हो जाती है, but it is the same. So A is correct out here. Let's talk about the B option. Embryo develops at the chalazal end of the embryo sac where the zygote is situated. Zygote is situated toward the micropylar end. So that happens to be wrong. Let's talk about the C option. Most zygotes divides only after certain amount of endosperm is formed. Obviously endosperm का development पहले होता है क्योंकि वो nutrition देता है. So that is also correct. A typical dicot embryo consists of an embryonal axis. Obviously this is the embryonal axis. यहाँ पे मेरे पास दो cotyledon है, तो ये a typical, this is having what, two cotyledons, correct? So this is also right. Therefore the answer for 119 happens to be the B option. ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट 120. कॉलम ए एंड कॉलम बी. ओके, थोड़ा हमारे पास ए बी सी डी, लेट्स टॉक अबाउट दैट. सिनगैमी यहाँ पर किसी से नहीं बैठ रहा है. प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इज फॉर्म्ड बाय इनसाइड द सेंट्रल सेल आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन. तो बी का आंसर हो गया मेरे पास में 1. ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब देखिए सी ऑप्शन, फ्रूट इज डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी. सो दिस इज सी का ऑप्शन मेरे पास में 3 हो गया, प्रॉब्लम नहीं है. स्क्यूटुलम फॉर्म बाय द, नो इट इज स्क्यूटुलम, ये क्या हो गया मेरे पास? ए का आंसर क्या हो गया? 4. सिनगैमी, व्हाट इज दैट? द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल, द ज़ाइगोट. देन आई टॉक अबाउट द डी ऑप्शन, स्क्यूटुलम मेरे पास अगर आप जाते हो तो लुक एट दिस ऑप्शन. कहाँ था स्क्यूटुलम? कॉटलीडन इन द ग्रास फैमिली. सो दैट मीन्स द सेकेंड ऑप्शन. ठीक है ना, चलिए लेट्स हैव अ लुक फॉर इट. राइट आंसर क्या है? द राइट आंसर फॉर दैट हैपन्स टू बी, देखिए इसको, 4 1 3 2. सो दैट मीन्स ए हैपन्स टू बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन. ओके, चलिए आगे देखते हैं. 121. Which of the following strategies is the only type of pollination that can bring
the genetic different types of pollen grains to the stigma, genetically different types of pollen grains to the stigma. तो चलिए देखें, ऑटोगैमी में सेल्फ पॉलिनेशन, वो नहीं करेगा. गेटेनोगैमी मीन्स द डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, वो भी आपके पास मदर इज सेम, तो जीन्स आर सेम. क्लिस्टोगैमी मीन्स क्लोज फ्लावर, ऑट टू गो फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. तो आंसर बचा हमारे पास 121 का द बी ऑप्शन. व्हाट इज बी ऑप्शन? दैट इज नोन एज xenogamy. फाइन. चलिए 122. हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड by a heterozygous individual having genotype this? Now, what's the formula for that? 2 to the power n. What is n standing for? Number of heterozygous alleles. ठीक है ना? Alleles. तो मेरे पास कितनी heterozygous? 3. तो 2 to the power 3. That means 2, 4, 8. 8 is the answer. अब हमारे पास 8 नहीं है. So that means the B option is correct. 2 to the power 3. है ना? The answer is B. Let's talk about 123. Match the following again. Look at the A option. A, B, C, D. Let's talk about that. Alleles. Slightly different forms of the gene. So that is matched by what? 4 वाला से. Co-dominance जो है हमारे पास में, जब दोनों के दोनों resembles both the parents, that is C. 3. Incomplete. F1 was in between the parents. हमारे पास जैसे रेड फ्लावर्स था, व्हाइट फ्लावर था, स्नैपड्रैगन में मिलके पिंक बन गया, सो दैट इज इन बिटवीन द पेरेंट्स, सो दैट इज द बी ऑप्शन आउट हियर. अब हमारे पास डोमिनेंस, F1 ऑलवेज रिजेंबल्स ईदर ऑफ द पेरेंट. आपके पास पर्पल है और व्हाइट है, तो कौन सा दिखाई देगा? पर्पल ही दिखाई देगा, सो दैट इट हैपेंस टू बी द फर्स्ट ऑप्शन. तो 4, 3, 2, 1, लेट्स सी द आंसर फॉर इट. द आंसर फॉर दिस 4, 3, 2, 1 हैपेंस टू बी द A ऑप्शन. फाइन, करेक्ट है. चलिए 124. A couple having a son and a daughter. What is the probability that the third child will be a daughter again? तो हमारे पास में एक son और daughter होने का दोनों में से एक चांस है. So that happens to be the B option. 50% chance of having either a son or a daughter. So that is what? 50%. Okay? चलिए 125. Which of the following Mendelian disorder is controlled by 2 closely related linked genes, HBA1, HBA2, present on chromosome number 16, observed due to the mutation? So है तो ये थैलेसीमिया का है ना? बट थैलेसीमिया कौन सा? अल्फा की बीटा. द आंसर फॉर 125 happens to be A. That means हमारे पास में 4 जीन्स किसमें होती हैं? 4 genes are present in case of the alpha, whereas 2 genes are present in case of the beta. So the answer for the question happens to be the A, that is 4 genes के लिए अल्फा थैलेसेमिया. अगर मैं सिर्फ 2 जीन्स लिखती, HBB लिखती, तो मेरे पास में क्या होता? मेरे पास बीटा थैलेसेमिया. सिकल सेल एनीमिया कब है? दैट इज जस्ट द ग्लूटामिक एसिड बीइंग चेंज इनटू व्हाट? द वेलाइन. कौन सा वाला? 6th अमीनो एसिड. तो एक नाइट्रोजनस बेस चेंज हुआ है. ठीक है. चलिए 126. Pleiotropic disease, phenylketonuria, which occurs in humans, is caused by a single mutation in the gene that codes for. अब आप देख लीजिए, हमारी बॉडी में क्या है? फिनाइलएलानाइन. ठीक है. ये इन प्रेजेंस ऑफ फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज क्या बना देता है? इट फॉर्म्स व्हाट? टायरोसिन. क्या बनाता है? टायरोसिन. तो दैट मीन्स बॉडी फंक्शन प्रॉपरली करता है. बाई चांस हमारे पास एंजाइम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो टायरोसिन नहीं बनेगा, तो क्या बन जाता है? फिनाइल पायरुवेट. ठीक है ना? तो ये हमारे पास में रॉन्ग हो जाता है. तो अभी कौन सा हमारे पास में है? किस उसमें से प्रॉब्लम आती है? कॉज्ड बाय म्यूटेशन फॉर द एंजाइम. व्हाट इज दिस नोन एज दिस? सो दैट इज द ऑप्शन नंबर सी. व्हाट इज दिस? कार्बोक्सी डिस्म्यूटेज. What is this carboxy dismutase? पता आपको? हमने नहीं कभी पढ़ाया, but carboxy dismutase is the other term used for Rubisco. Rubisco जो है ना, पहले इसको carboxy dismutase भी बोलते थे. टायरोसिनेस ऑब्वियसली ये मेलानिन पिगमेंटेशन के लिए हेल्प करता है. ठीक है. चलो, और फिनाइल पायरुवेट काइनेज, तो आई होप यू आर अवेयर. पायरुविक एसिड जब फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनती है, तब हमारे को ये एंजाइम चाहिए. चलिए, इन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट याद आ गया, जेनेटिक्स में पढ़ा था. Griffith mixture, what did he do out here? He added the mixture of heat-killed S type of the bacteria. कौन सा बैक्टीरिया? Pneumococcus. And with the live R strain of the Pneumococcus. अब जब दोनों दे दिया माइस को, तो माइस डाइड, तो क्या हो गया होगा? हम सबको पता है
हीट किल्ड जो एस टाइप है, हीट किल्ड एस टाइप इज इनएक्टिव नाउ, इट कैन नॉट गो फॉर फंक्शनिंग आउट हियर, नहीं तो ये डिजीज कॉज कराता, उसके डेथ कॉज करता, बट इट इज ऑफ नो यूज नाउ, बट इसके पास में ही आर टाइप भी है। यहां से हमारे पास में डीएनए यहां पर चला गया, therefore R type receives the DNA from here and gets transformed into S type, transformed into S type. So that means R strain of the bacteria transformed into S, which is correct, option number A. But still let's read the other options too. Okay, हर ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, क्लियर? S type, S strain of bacteria became alive, obviously no. S strain bacteria was transformed into R, no. DNA of the dead S strain bacteria started to synthesize toxic protein, no. So that means the answer happens to be the A option. 128. Function of the DNA ligase is to catalyze the, what is it? DNA हमारे पास एक साइड में पूरा बनता है कंटिन्यूस, एक साइड में हमारे पास ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं, इनको हमने ज्वाइन करना है। तो क्या हमने सीखा है? When you are supposed to join something, तो ज्वाइन कहाँ पे होता है? It's always at the 3' end, और 3' end में मेरे पास क्या होगा? OH। तो एक न्यूक्लियोटाइड है, उसका मेरे पास में क्या 3' है, उसको जाके मैं अटैच करूंगी विद दूसरा न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज दैट हैविंग 5' एंड, एंड व्हाट इज दैट नोन एज फॉस्फेट। तो अभी मेरे पास क्या बन जाएगा? फॉस्फेट बॉन्ड बनेगा ना, एस्टर बॉन्ड बनेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस एंड द शुगर, ऑब्वियसली नो, उनको मैंने क्या लेना है, तो लाइगेस पूरा न्यूक्लियोटाइड्स बन चुका है। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द 2 DNA फ्रेगमेंट्स आउट हियर, एक मेरे पास डीएनए फ्रेगमेंट वहां पे बन गया, मतलब एक मेरे पास थोड़ा सा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बना या भी बना, उनको ज्वाइन करूंगी यहां पर, तो व्हाट इज दैट नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वहां पे बनेगा। सो दैट इज व्हाट बी। फाइन, क्लियर विद दिस? चलिए आगे मेरे पास में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेकेज वो सब कुछ नहीं है। सो आंसर फॉर दिस हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन। 129. डीएनए sequence that provides binding site for the RNA polymerase is present in, तो where do you have that? आपको बताया गया था कहां पर होता है, it is the promoter site, promoter site में sequences होते हैं, वहां जाके हमारे पास RNA polymerase bind करता है। जब वो RNA polymerase bind करता है तो structural genes gets transcribed out here, टर्मिनेटेड रीजन में ये जाके स्टॉप कर देता है। कोडिंग स्ट्रैंड ओनली नहीं, कोडिंग स्ट्रैंड तो हमारे पास दूसरा स्ट्रैंड है जिसको हम, जो हमारा mRNA बनता है वो उसकी कॉपी बनती है यहाँ पे, ठीक है? फाइन, एक्सेप्ट फॉर क्या हमारे पास में U बनता है इंस्टेड ऑफ T। नेक्स्ट 130. Which of the following codons has 2 functions? बिना पढ़े हम सबको आना चाहिए। AUG, what is AUG? AUG is known as the start codon as well as it is known as the methionine. It stands for, it codes for methionine. बाकी जो है हमारे पास सबके लिए नहीं करते हैं, वो हमको मालूम होना चाहिए, सबके नाम यूज करने की जरूरत नहीं। UGG एक याद रखो, हमारे पास में 2 ही ऐसे हैं जो हमारे पास में क्या है, एक ही अमीनो एसिड को सिग्निफाई करते। दैट मीन्स this amino acid methionine is being coded by AUG only and tryptophan is coded by UGG only. Fine, चलिए 131. Select the incorrect match with respect to the lac-opron. चलिए 131. देखिए structure, I hope you are aware, ये मेरे पास lac-opron है, this is lac-opron। यहाँ पे मेरे पास उसको मैं छोड़ रही हूँ, यहाँ पर ये पोर्शन डायरेक्टली लिख रही हूँ, रेगुलेटर जीन, यहाँ पे मेरे पास प्रमोटर जीन, यहाँ पे मेरे पास ऑपरेटर जीन, यहाँ पे मेरे पास स्ट्रक्चरल जीन्स है, ठीक है? अब द स्ट्रक्चरल जीन्स, दिस आर स्ट्रक्चरल जीन्स। अच्छा, इनकरेक्ट, ट्रांसक्राइब्ड मैसेज RNA फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, यस दिस इज गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब्ड आउट हियर। फाइन। Regulator gene functions in the presence of lactose. The regulator gene is going to produce a regulator, that means a repressor, and that is produced in presence of the lactose. It's produced in the absence of the lactose, हमेशा produce होता ही रहता है। So that happens to be wrong. Function in presence of lactose only. So B is wrongly matched out here. Operator gene interacts with the regulator molecule. This goes and binds to this. So that is correct. Promoter gene possesses site for RNA polymerase synthesis. अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ पे RNA polymerase आके bind करता है। So that means the only incorrect wala is the option number B.
132. Which ecosystem has maximum biomass? Biomass means productivity. सबसे ज्यादा productivity किसकी होगी? तो forest लोग की सबसे ज्यादा होती है. तो forest ecosystem is having the maximum productivity. अगर इस forest में भी अगर आपको divide करके दे दिया tropical rainforest and temperate, then आपको tropical rainforest लिखना है. Otherwise forests are having maximum productivity out here. But अगर मेरे पास में estuaries लिखा है वो भी correct है out here. Okay? चलिए 133. Let's have a look for it. Standing state. चलो मैच करते हैं. A, B, C, D. Go for it. Standing state. Total inorganic molecule. That means nutrients present out here. So what is this? Amount of nutrients. That means second wala. Gaseous cycle. Nitrogen and carbon happens to be the gaseous cycle. That is option number 1. Fine. Standing crop. Standing crop talks about what? The living, the organic matter present out here. So answer for that is 4. And finally the D wala. Sedimentary cycles. Phosphorus, sulfur are the sedimentary cycles. So that is option number 3. So let's see to that 2, 1, 4, 3. So the answer for that happens to be the A option. Fine. Chaliye. 134. I had given a similar question to you in the last PT wala paper. Almost similar hai. Let's talk about that. We are having this equation NT is equal to NO plus B plus I minus G plus E. है ना? अब पूछा यहाँ पर E, फिर पूछा B, फिर पूछा D. ये क्या है? तो फर्स्ट इज दिस, सेकेंड उसने पूछा B एंड थर्ड उसने पूछा. चलो देखते हैं. बिना पढ़े आई होप आपको E एमिग्रेशन, चले जाना बाहर. फिर हमारे पास B बर्थ रेट, बर्थ को क्या बोलते हैं? नाटिलिटी. D मोर्टालिटी. तो लेट्स गो फॉर इट. E इज रेट ऑफ इमिग्रेशन, हमारे पास 2 इज natality, दिस इज मोर्टालिटी. द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द B ऑप्शन. करेक्ट. चलिए 135. लेट्स टॉक अबाउट 135. An orchid resembles the female of an insect. Obviously सुंदर सी ऑर्किड होती है, इंसेक्ट आता है, उसको लगता है ये मेरी पार्टनर है, वहां पे चला जाता है. बट वहां पे जाता किसके लिए? मेटिंग के लिए. व्हाट इज मेटिंग? नोन एज कॉपुलेशन के लिए. बट वहां पर क्या करके आता है? पार्टनर तो मिलती नहीं है, तो पॉलिनेशन करके आता है. तो व्हाट इज दिस नोन एज? ऑब्वियसली कॉपुलेशन करने गया, बट स्यूडो है, फॉल्स है, तो दैट इज नोन एज द बी ऑप्शन फॉर इट. करेक्ट. पार्थेनोकार्पी हो नहीं सकता, सीडो पॉलिनेशन भी नहीं है, मिमिक्री एक्ट तो नहीं कर रहा ना, एक्टिंग तो नहीं हो रही है, तो दैट इज मिमिक्री नहीं है. ओके. चलिए 136. मेन स्टेप्स फॉर द प्लांट ब्रीडिंग. चलिए स्टेप्स को देखते हैं. सबसे पहले व्हेन यू लुक एट द स्टेप्स, हमारे को क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर 5, दैट इज वेरिएबिलिटी. जर्म प्लाज्म कलेक्शन करना पड़ेगा. आफ्टर यू कलेक्ट द जर्म प्लाज्म्स आउट हियर, तो आपने क्या करना? इवैल्यूएशन एंड द सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स. बहुत सारा जर्म प्लाज्म मिला, उनमें से बेस्ट पेरेंट्स कौन से वो हम सिलेक्ट करेंगे. सो देन वी गो फॉर द सेकेंड ऑप्शन. अब हमने पेरेंट्स ले लिए, उनमें क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे. सो व्हाट इज दिस? क्रॉस ब्रीडिंग अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स. दैट इज ऑप्शन नंबर 1. अब उसको कराने के बाद में हमारे पास में रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, उसमें से सिलेक्शन करेंगे. सिलेक्शन इन द टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. एंड फाइनली वी आर गोइंग टू हैव, मिल गया हमको, उसको टेस्ट करके, उसको रिलीज करके कमर्शियलाइजेशन करेंगे ऑफ द कल्टीवर्स. दैट मीन्स जो कल्टिवेटेड प्रोडक्ट है. सो दैट इज ऑप्शन नंबर 4. सीक्वेंस पढ़ना है. दैट इज 5, 2, 1, 3, 4. So that is option number C. चलिए go for it. 137. Again it is the incorrect वाला. टेबल बना हुआ है, बहुत आपको याद करने का सही बताया था, आपको ट्रिक्स सिखाए थे. वीट, लीफ एंड स्ट्राइप, रस्ट, हिल बर्न सिखा दिया है, हिमगिरी होती है वो वैरायटी, तो दैट इज करेक्ट. ब्रासिका, पूसा स्वर्णिम, स्वर्णिम गोल्ड. मैंने क्या बताया था? जब गोल्ड चीज होती है, खराब होता है तो क्या बनता है? व्हाइट. सो दैट इज अगेन बैक रॉट ऑफ मस्टर्ड. सो दैट इज रॉन्ग. यहां पर इसका क्या होना चाहिए था? व्हाइट रस्ट. सो दैट मीन्स द रॉन्ग आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर बी. बट बाकी भी देख लीजिए. काउपी बैक्टीरियल डिजीज है. फिर हमारे पास चिली सदाबहार, पूसा सदाबहार, तो चिली मोजाइक है. टीएमवी बताया था सदाबहार सब जगह फैला हुआ वायरस. सो व्हाट इज दिस? द डी का आंसर इज आल्सो करेक्ट. सो रॉन्ग आंसर आउट हियर इज ऑप्शन नंबर बी. 138. Methanogens are the archaebacteria which produce methane from what? In the Marcharius, right है, correct है. So A is right. B देखते हैं. Nostoc is a filamentous blue-green algae, very correct.
which fixes nitrogen. Obviously nitrogen fix करता है, heterocyst होता है, so this is also correct. अब पूछा क्या है? The answer is both of these are correct, so that is the answer for the question happens to be the B option. Fine. चलिए 139. Let's talk about 139. This is the virus. किसका बना हुआ है? टोबैको मोजाइक वायरस का स्ट्रक्चर बना हुआ है. ये पूछा है कि कौन सा है. ऑब्वियसली टोबैको मोजाइक वायरस के अंदर में कौन सा आपको आरएनए मिलता है? दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. व्हाट इज दिस? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. ऑप्शन नंबर ए आउट हियर. चलिए 140. हाउ मेनी % वर्ल्ड्स लैंड एरिया गोज टू इंडिया? डाटा दिया हुआ है 2.4% है. लैंड एरिया कम है बट डाइवर्सिटी ज्यादा है, सो दैट इज ऑलमोस्ट डाइवर्सिटी इज 8.1 जो दिया है. डाइवर्सिटी उतना है बट लैंड एरिया इज व्हाट? द सी ऑप्शन फॉर इट. ओके, तो हो सकता है कमिंग पेपर्स में कहीं पे आपको बट डाइवर्सिटी आ जाए. तो इंडिया में कितना डाइवर्सिटी है? सो दैट इज 8.1 बायोडाइवर्सिटीज. ओके 141. इनकरेक्ट स्टेटमेंट. द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन. आई होप आपको पता है. हमारे पास में सबसे पहले रूट कैप है, फिर मेरे पास में क्या है? मेरिस्मेटिक जोन, फिर इलोंगेशन जोन, फिर मैच्योरेशन जोन. The cells of elongation zone of the root gradually differentiates and mature. Obviously, elongation है, differentiate करेगा, mature करेगा. ठीक है? So A is correct. A को कोई problem नहीं है. B now. The root hairs absorb water and minerals from the soil. Root hairs जो है water minerals from the soil absorb करते हैं. Obviously correct है. One of the function of the root is to synthesize plant growth hormones, which is also correct. Line लिखा, डाटा बुक में लिखा है. मेरिस्मेटिक सेल्स आर थिक वॉल्ड. यहाँ पे गलती आ गया. मेरिस्मेटिक सेल्स हमेशा थिन वॉल्ड होता है एंड हैज डेंस प्रोटोप्लाज्म व्हिच इज करेक्ट, बट वहां पे थिक वॉल्ड लिख दिया, सो दैट इज रॉन्ग आउट हियर. सो देयरफॉर द आंसर फॉर 141 हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन. फाइन. चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? लेट्स हैव अ लुक. Sorry, which of the following structure lacks chlorophyll? Chlorophyll is absent out here. Petiole of the Australian acacia. Yes, petiole जो यहाँ पर है modify हो जाती है, so वो photosynthesis भी कर रहा है, so that is correct. Picture of the picture plant. Yes, picture of the picture plant आपने देखा green color का होता है. Modified stem in Opuntia, phylloclade, वो भी green color का होता है, वो भी खाना बनाता है. तो किस में absent है? The fleshy leaves of the onion. Fleshy leaf of the onion में क्या है? जो ग्रीन कलर का तो है नहीं, फ्लैशी जिसको हम खा रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस कैसे कर सकता है? नहीं. सो दैट मीन्स उसके पास में क्लोरोफिल नहीं है. सो आंसर फॉर दैट हैपेंस विद द डी ऑप्शन. 143. इनकरेक्ट. पेरियंथ जो है, व्हाट इज पेरियंथ? द कैलिक्स एंड करोला कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड. आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों एक जैसे हैं. फॉर्म बाय कैलिक्स एंड करोला आर डिस्टिंक्ट, व्हिच इज रॉन्ग. तो हमारे पास आंसर फॉर द क्वेश्चन 143 happens to be the A option. Unisexual flower, either male or the female is present, correct है. Steminodes, right, stamen है, right है. Perigynous, half inferior ovary, right है. ठीक है? So that means the answer is 144 now. The transverse section of the plant part, each vascular bundle is noticed to as conjoined, मतलब जुड़ा है, xylem and phloem, close, that means cambium नहीं है. Conjoined हो गया तो that means it's a stem का feature. स्टेम का फीचर, बट स्टेम में भी अगर वो हमारे पास में क्लोज्ड है, सो दैट मींस मोनोकॉट स्टेम. मोनोकॉट स्टेम का है. दे आर टॉकिंग अबाउट दिस. आइडेंटिफाई द प्लांट पार्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट फीचर फॉर इट. इट्स एंडोडर्मिस इज फिल्ड विद स्टार्च ग्रेन. एंडोडर्मिस इज नॉट डिस्टिंक्ट, रॉन्ग. इट हैज रूट हेयर्स, रॉन्ग. रूट हेयर्स इसके पास, स्टेम इसके पास नहीं होता है. ठीक है, ऑब्वियसली स्टेम की बात करें तो रूट हेयर्स कैसे होते हैं? स्टेम हेयर की बात हो सकती है. It cannot have cuticle, wrong. Cuticle is present out here. It has enlarged protoxylem, obviously correct. That means protoxylem towards the center, metaxylem towards the periphery. इसको बोलते हैं enlarged, and that is seen in case of both monocot as well as the dicot stem. दोनों में मिलता है. Fine. चलिए 145. The peripheral region of the secondary xylem, which is involved in the conduction of water and minerals from the roots to the leaf in the dicot stem is, देखो पेरिफेरल रीजन. अगर आप वुड की बात कर रहे हो, ये मेरे पास में वुड है, ये वुड है. सेंट्रल पार्ट इज नोन एज अ हार्ट वुड विच इज डार्क इन कलर, बट हमारे पास कंडक्शन कौन करता है? बाहर वाला पेरिफेरल. सैप वुड, सैप मतलब ही क्या हो गया हमारे पास में? वाटर प्लस मिनरल्स. सो द डार्क ब्राउन इन कलर, नो. व्हाट इज दैट? हार्ट वुड. लेट वुड एंड ऑटम वुड आर रिलेटेड विद व्हाट? द एनुअल रिंग्स. यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारे पास में? सैप वुड. द ऑप्शन नंबर बी. चले 146.
Which of the following is not the cause of the loss of biodiversity? 4 quadrants सिखाया, 4 कौन कौन सा? Habitat loss and fragmentation, over exploitation, invasion by the alien and co-extinction. जो मतलब को कहते हैं एक्सिस्टेंस है, को एक्सिस्टेंस है तो को एक्सटिंक्शन होता उसका. तो चलिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट राइट है, कि इन्वेजन बाय द एलियन स्पीशीज राइट है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन राइट है, एंड हमारे पास क्या हो गया? कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क्स. सो दैट इज रॉन्ग. दिस इज नॉट द लॉस आउट हियर. ये तो इनफैक्ट हेल्प कर रहा है हमारे पास में. सो दैट मीन्स व्हाट? सी ऑप्शन है ना. 147. चलिए देखते हैं. लेप्टोटिन, मैच दिस. लेप्टोटिन में क्या हो रहा है? लंबा लंबा क्रोमोसोम कंडेंसेशन करता है. सो कंपैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम कंटिन्यूज. दिस इज सी 3. जाइगोटिन, हमारे पास में क्या है? जाइगोटिन में पेयरिंग होता है, बाइवेलेंट synapses. So that means what? A. That means 1. Pectitin, you are going to have appearance of recombination nodules because हमारे पास क्या होता है यहाँ पर? We are having what? We are having crossing over. So that is 4th वाला. D. Dikinesis. यहाँ पे हमारे पास क्या है? Terminalization of the chiasmata. So that means 2nd option. So let's see to that. 3142. 3142 is the D option. 148. If a diploid cell with 20 chromosomes, तो क्रोमोसोम कितना है? 20 and 32C DNA. DNA कितना है? 32C. ठीक है. Now enters a cell cycle. What will be the number of chromosomes and the DNA after the S phase? आप सबको पता है S phase में DNA duplication होता है. So that means ये तो कितना बन जाएगा? 64. बट आपको ये भी मालूम है कि हमारे पास में क्रोमोसोम डुप्लीकेशन नहीं होता है. सो दैट मीन्स क्रोमोसोम इज गोइंग टू रिमेन द सेम बट डीएनए डुप्लीकेशन हो गया है. सो दैट मीन्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन. क्लियर है? चलिए लेट्स प्रोसीड. द शॉर्ट लिविंग रेस्टिंग फेज बिटवीन द 2 मियोटिक डिवीजन्स. आई होप आपको पता है मियोसिस जो होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. इसके पहले हमारे पास या आफ्टर द साइकिल हमारे पास इंटरफेस है, बट यहाँ पे भी तो रेस्टिंग चाहिए, प्रिपेटरी फेज चाहिए. व्हाट इज दैट नोन एज? इन बिटवीन द 2? इंटरकाइनेसिस. तो आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन, इंटरकाइनेसिस. फाइन. 150. I had given you a similar question in case in the PT7 also. Log scale, relationship between species richness and the area. What did I teach you? More the area, more the species richness, but up to a certain limit. अगर मेरे पास नॉर्मल बनाती हूँ तो मेरे पास, मैंने आपको सिखाया था, I do get what? I do get a rectangular hyperbola. What is that? S is equal to CAZ. But अगर मैं log के फॉर्म में करती हूँ तो I get this as it. What is this? Log S is equal to log C plus Z log A. है ना? Then only I get a straight line for it. So therefore the answer for that happens to be the D option. So this is all about the botany part. I hope आपने answers अच्छे से सीख लिए हैं. Whichever question you are having any problem, you can contact me. So thank you. All the best. Keep studying.